So welcome everyone. Just put all the videos and audios on mute. We don't need the videos and the audios. And if you have any questions, any comments in between, then you can use the chat window. This is just to make the noise at least possible noise, and we'll be using extensively the chat window for comments, questions, anything, right? So I really welcome you, all of you who have taken time today for today's session. And so today's session is an invocation, as it is seen on the poster. It's an invocation to bring Kabir alive in our day-to-day life. We all have heard Kabir ji's dohas in our Hindi textbooks when we were little, and even now, nowadays it's pretty much in fashion also, like folk style singing and other things that we see all around. But the thing is that many a times it happens that those words are resonating all around us, but still we are untouched by the words as if. So this session and the previous session that was held again on the Kabir's dohas, it is an invocation so that these words are not just so the invocation is so that these words are not just words, but they become our life. That the gap between knowing and living is kind of narrowed down, because all of us have a lot of gyan. We have done so many workshops, we have attended all the healing programs, but still we feel that there is much that can be done in order to progress and live those words, rather than just listen and not being able to outwardly manifest the difference, even after listening and being immersed in the words of the mystics. So we will be listening to many dohas today, and you are most welcome to either unmute yourself and share any dohas that you would like to, especially when it is practically kind of alive for you. I usually don't take, we don't discuss much philosophy here. We really discuss the practical implementation of the dohas. What is Kabir saying for our day-to-day life, and why is he saying that? Why is it so important? So this is how it's going to be. And also in the beginning I would like to mention that Kabir ji has called himself Das Kabir. He has not called himself Sant Kabir or he has not called himself any other with any other kind of notation. We might use that word for him, like we now call him Saint Kabir, but he never used for himself Saint Kabir. He used Das Kabir. And it's really very, very important, because as a das means slave, gulam, who has no will of his own, who has abandoned his will to a higher self, who has abandoned his will to something higher than himself. And this is what being a slave to the divine refers to. So when Kabir says that chadariya jhini re jhini and Das Kabir ne jatan se odi, it means that I put a lot of effort. I have put a lot of conscious effort in being a slave. So if you look at our own daily lives, we put a lot of conscious effort in, not to be a slave to anyone, but we all know that we all are slave of our egos. This is my liking, this is my preference, and that is not what I want, and this is how the other person should behave, and these kind of things. So we all have to be slave of something. It is not possible that we are not slave of something. So Alamji, you can put the video off and audio too. We will use the chat window जो है उसको हम use करेंगे कोई question comments के लिए. So हमारा जो नेचर है वो इतना ज़्यादा चिपचिपा होता है कि कहीं ना कहीं हमें जाके चिपकना है. तो अगर हम ईगो की टेंडेंसीज से नहीं चिपकेंगे, अपनी वृत्तियों से नहीं चिपकेंगे, तो हम कहाँ चिपकेंगे? कहीं ना कहीं तो चिपकेंगे. किसी पर्सन को चिपक जाएंगे, किसी बंदे को, किसी सिचुएशन को चिपक जाएंगे, अपनी किसी आदत को चिपक जाएंगे, जिसे हम एडिक्शन का नाम देते हैं. तो ऐसा क्यों है कि हम चिपचिपे हैं इन नेचर? और इसके पीछे भी एक बहुत काइंड ऑफ अ मिस्टिकल राज है जो हमें एक सिग्नल की तरह आगे बढ़ाता है.
We all are seeking something, we all are searching for something, and हमारे जो तरीके हैं ढूंढने के वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि कुछ है जो ढूंढा जा रहा है, एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या ढूंढा जा रहा है. सो वो क्या चीज है जो ढूंढी जा रही है, उसकी तरफ कबीर इशारा करते हैं. सो लेट अस टेक अ फ्यू दोहाज एंड सी व्हाट कबीर काइंड ऑफ hints us towards, what are these mystical things that Kabir is hinting at, कि अपना जो डेली तुम्हारी दिनचर्या है उसको किस तरह से जी रहे हो, जाग सके तो जाग जा, अपनी तरफ से जागे हैं, बट कबीर कह रहे हैं जागो. So let us see what Kabir is wanting to say through a couple of dohas. So Kabir ji is saying, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए. सो कबीर जी सेइंग कि मेरे को साधक इस पथ पे, साधना के पथ पे साधक ऐसा चाहिए जैसे कि छलनी होती है जिसमें गेहूं छानते हैं, जिसमें जो गेहूं के मोटे मोटे दाने होते हैं वो अलग रह जाते हैं और जो गेहूं का छिलका है वो उड़ के अलग हो जाता है. तो मुझे साधु ऐसा चाहिए कि जैसे छलनी हो. कैसी हो छलनी? सार सार को गही रहे. Essence, all the essence that is coming from moment to moment in our lives should be taken in. The depth of each and every moment, each and every action, each and every behavior should be done in a way that it becomes a means to progress towards the essence that we are, the divine essence that we are. सार सार को गही लहे, जो मेरी प्रोग्रेस के लिए जरूरी है मैं सिर्फ वही लूंगा उसमें से, और थोथा दे उड़ाए. What do you mean by थोथा? What is थोथा? Thotha is anything which is not useful. Now for example, if I am having a conversation with a person and the person says something to me that this is how you behave and this is not a nice way to behave and whatever. Now my attention goes more to the person's tone, कि ये कह किस तरीके से रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को इस तरीके कहने की. सो दिस इज थोथा. ये मेरे किसी काम आने वाला नहीं है. मेरे काम क्या आएगा? मेरे काम वो आएगा एसेंस, कि ये कह रहा है कि मैं चीजें भूल जाता हूं. तो अब आप इसको एक प्रोग्रेस का तरीका बना सकते हैं कि क्या मैं एक्चुअली में मैं चीजें भूलता हूं, और अगर मैं भूलता हूं तो कैसे मैं इसके प्रति कॉन्शियस हो सकता हूं. So totally, being completely concerned with our own progress, being completely concerned with how can I progress towards my own inner truth, and not indulging into affairs which are totally unnecessary. For example, in this case, focusing on the tone of a person, because that doesn't help you, that puts you even down, you are pulled down in the lower consciousness further. So this is the quality of the sadhak that Kabir is saying. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए. Then the next one Kabir says, निंदक नियरे राखिए, again related, very much related. निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए. अब जो निंदक होते हैं, जो हमें बताते हैं कि तुम में ये कमी है अभी, और मोस्टली वो हमें अपने घर के आसपास ही मिलते हैं, घर में ही मिलते हैं. मोस्टली दे आर वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स. मोस्ट ऑफ अस आर वेरी लकी टू हैव एक्चुअली फैमिली मेंबर्स who are the most critical of us. And why is it so good for us? Because if I really think that I have done or achieved all the progress I had to, then one becomes stagnated, कि हाँ मेरा तो उत्थान जो होना था हो गया. And with having people like these around who constantly, kind of bring some or the other light on your shadows, we are consciously getting awakened to our own shadows and darknesses. Now it is not to say that whatever the other person is saying is true, but there would be parts and pieces of truth in that. And we can only take those. We can take healthy criticism, we can use it for a progress, as a means to progress, कि अच्छा अगर इस बंदे ने बोला है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई हो सकती है. तो let us take it only that part, as the previous doha said,
एंड यू नो रिजेक्ट द रेस्ट ऑफ द पार्ट की टोन क्या थी, बोलने का तरीका क्या था, ये तो बार बार ऐसे ही बोलता है, अपने दोष नहीं देखता, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. सो दिस इज ऑल नॉन एसेंशियल. What is essential is I should be concerned with my own progress, with getting in touch with my own inner truth and nothing else, you know. And that is why Kabir in the next doha says, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोई. सो कबीर जी सेइंग कि तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे लिए बुरा ही सोचते हैं, तुम्हारे एनिमीज हैं बहुत सारे, बट कहते हैं कि अगर तू अपना ये आपा डाल दे, अगर ईगो डाल दे तू अपनी नीचे, थोड़ा इसको नीचे बैठा दे, इसको थोड़ा लेट गो करना शुरू कर दे, ईगो को, मन को थोड़ा शीतल करना शुरू कर दे, इतना आग बबूला ना हो जाए अगर हर सिचुएशन पे, अगर ये आपा तू डाल दे तो दया करे सब कोई. नाउ दिस इज वेरी मच इन कॉन्टिन्यूएशन with the previous dohas, because if I begin to be a real sadhak, true sadhak, and take even criticism in a positive way, then even critical people become I can be really grateful for their presence. तो अब कोई भी हमारे ऊपर दया ही कर रहा होगा, क्योंकि अगर मान लो प्रेस कर रहा है तो ठीक है, चलो शुभ शुभ कुछ उन्होंने बोल दिया, और अगर बुरा भला बोल रहा है तो वो और ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बुरा भला किसको बुरा लगता है? बुरा भला सिर्फ बुरा लगता है ईगो को. सो बुरा भला किसको लगता है? बुरा भला सिर्फ उसको लगता है जो हर्ट हो सकता है. हर्ट क्या हो सकता है? सिर्फ ओनली ईगो कैन गेट हर्ट. And why the ego can get hurt? There is a very good logic behind it, because ego does not want to progress. Ego wants to stagnate itself, it is stagnated. So when we are moving towards our own progress, then we are letting go of the ego in that moment. When I am using anybody's comment as a means to progress, I am letting go of my ego, which is stagnated. उसमें से बदबू आती है ईगो में से, because it stagnates. What is ego? All the beliefs, all the images that I have about myself, कि मैं ऐसा ऐसा हूं और ऐसा नहीं हूं, right? That is ego. So Medha ji, you can put the video off, and we'll be using the chat window for any questions. So ego wants to stay in its limited boundary, and it wants to say कि मैं तो ऐसी हूं और मैं तो ऐसी ही रहूंगी, I don't want to progress, और तभी कोई भी अगर जो कमेंट है वो ईगो के लिए काफी बुरा एक हर्ट बन के आता है, because it already knows what it is. And if anybody says अरे तू तो ऐसा ऐसा है, तो बड़ी दर्द होती है, क्योंकि ईगो को पता है कि मैं तो ऐसी नहीं हूं. And then what happens is ego gets hurt. So this can be taken as sutra, this can become as a mantra, that whenever something in us is getting hurt, we can tell ourselves it's nothing but some facet of the ego, some part of the ego which now is ready to dissolve, which now is ready to let go of itself. It's an auspicious beginning. बहुत शुभ संकेत है अगर कोई हर्ट हो रहा है हमारे अंदर. अगर हम एक अपना ध्यान अपनी Okay, is my voice not loud enough for rest of you as well? Rishi is saying the voice is not enough. Perfect for me. Okay, Rishi ji थोड़ा कान के पास कर लीजिए. And rest of you, please mute yourself. Somebody is not muted. Thank you, Reggie. Thank you. So, human beings, हम जो हैं मनुष्य जीवन को बहुत अनमोल बोला गया है. वो इसलिए अनमोल बोला गया है क्योंकि एक ह्यूमन बींग्स के पास कैपेसिटी है अपनी तरफ मुड़ के देखने की. सो जब मैं कह रही हूं कि हम सबकी एक ईगो है, उस ईगो को कोई एक डॉग अपने मुड़ को नहीं दे सकता, एक कैमल अपने आप को मुड़ के अपने अंदर नहीं देख सकता.
ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, मनुष्य जन्म में ही हमें ये कैपेसिटी मिलती है कि हम अपनी ही एक्शंस को मुड़ के अपने अंदर की तरफ देख सकते हैं। जो हमारा विजन अभी सारा बाहर की तरफ रहता है कि कौन मुझे क्या बोल रहा है और मुझे इस पे क्या कमेंट करना चाहिए, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ हम मुड़ के देख सकते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्यों कर रहा हूं। जब ये बंदा मुझे कुछ कहता है, मैं बार बार इसी तरीके से क्यों रिस्पॉन्ड करता हूं, रिएक्ट करता हूं। ये जो कैपेसिटी है ऑब्जर्वेशन की, ओनली ह्यूमन बीइंग्स हैव, एंड दिस इज द वेरी कैपेसिटी विच हैज टू बी यूज्ड to travel deep within our being to connect ourselves back to the divine essence, right? So this is what we have to use, the precious human birth that we have. So let's go ahead and take a few more dohas. If you have any more dohas, we can also discuss those, so feel free to just give me a doha in the chat window and we can do that. तन को जोगी सब करें, मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। तो पहले तो बात करेंगे ये जोग क्या है। जोग मतलब योग। योग तो तन का योग हम सब परिचित हैं। तन का योग किसे कहते हैं, हठ योग, अयंगर योग, बहुत तरह के योग सब प्रचलित हैं। हम सब जानते हैं कि तन का योग किसे कहते हैं, और वो भी एक माध्यम है अपने मन के योग की तरफ। बट अनफॉर्चुनेटली मेनी अ टाइम्स दैट द अदर एस्पेक्ट गेट्स मिस्ड। तो कबीर जी कह रहे हैं कि तन का योग तो बड़ा आसान है, तुम कर लोगे, सब कर लेते हैं। मन का योग बहुत विरला है, कोई कर पाता है। नाउ व्हाट इज दिस मन का योग? मन का योग इज, मन इज लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर। द माइंड दैट ऑल ऑफ अस हैव, इट्स लुकिंग, सीकिंग फॉर इट्स बिलवड. And that is the reason we keep on kind of sticking to situations, sticking to people, sticking to our thoughts and patterns, because the very nature of the mind is very very sticky. चिपक जाता है, जगह जगह जाके चिपक जाता है। अब ये ढूंढ रहा है अपने प्रीतम को, जो मन है वो ढूंढ रहा है अपने प्रीतम को, और प्रीतम उसको वहां वहां नहीं मिल पाता जहां जहां से निराशा मिल जाती है। किसी आदमी के पास चिपक जाओ तो आदमी निराश कर देता है, किसी सिचुएशन को चिपक जाओ तो सिचुएशन निराश कर देती है। तो बाद में पता लगता है यार ये जगह ठीक नहीं थी। तो मन का जोगी कौन करता है? मन का जोगी कोई विरला ही करता है जिसको समझ आ गई है कि मन कहां जोग होना है, मन का योग किसके साथ होना है। नाउ दिस इज द कैच। मन, द माइंड हैज टू बिकम a slave, a servant of the divine truth within. Inner truth, which is only to be found when we become conscious of our own presence and delve deeper into our own depths, no matter what is the outer situation. This is how we travel deeply inside, and jog, मन का जोग जब हम कर पाते हैं अपनी inner truth, inner divine presence के साथ। जब तक मैं मन का जोग नहीं कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में, अपनी ही इनर ट्रूथ के साथ, अपने ही प्रीतम के साथ, तब तक मैं जगह जगह बाहर चिपकती रहूंगी। कभी मैं चिपक जाऊंगी अपनी इमेज को कि हाँ मैं अपने बारे में ये सोचती हूं, कभी मैं उससे चिपक जाऊंगी, कभी मैं चिपक जाऊंगी किसी इंसान को, कभी मैं चिपक जाऊंगी एक एम्बिशन लेके उसके पीछे, कहीं ना कहीं मैं चिपकती रहूंगी। सो कबीर कह रहे हैं कि अगर आप रियल जोग करना चाहते हैं तो मन का जोग कीजिए। तन का जोग भी कीजिए, ऐसा नहीं है कि तन का ना कीजिए, कि तन का डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, बट मन का जोग जो करता है वो फिर उसके भी आगे निकल जाता है, तन से भी आगे निकल जाता है। फिर आगे कह रहे हैं anything if you have, just keep typing in the chat window any questions related to the practical life, how to implement, any practical difficulties and challenges on the path. We can see what to take and what not to take. यह जीव आया दूर से, जाना है बहु दूर, बिच के वासे बसी गया, काल रहा सिर पर। सो कबीर जी इज सेइंग कि ये जो जीव है, ह्यूमन बीइंग, ये बहुत दूर से आया है, बहुत दूर से, और इसको जाना भी बहुत दूर है, और बस कहां गया? बिच के बासे बस गया, कहीं बीच में रास्ते में ही अटक गया। इमेजिन कीजिए दैट यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस
called Timbuktu, for example, and you are searching for Timbuktu and somebody has given you a map. So all the Vedas, all the Upanishads, all the scriptures have given us a map. And what we do is, somewhere on the way we find a market very interesting, and we find somebody there who is very very interesting fellow, and we begin talking with that fellow and we say यार बड़ा मजा आ रहा है इससे बात करने में, चलो शादी कर लेते हैं, घर बसा लेते हैं. And we kind of settle in the market itself while we were supposed to go to Timbuktu. And maybe after 40 years when we are unsettled, still restless, we realize that something कुछ जमा नहीं, कुछ गड़बड़ चल रही है. And then याद आता है, अरे यार मैं निकला तो टिम्बकटू के लिए था और ये अटक कहाँ गया. वही मार्केट में बच्चे भी हो गए, मार्केट में सारे ऑफिस हो गए, जॉब हो गई, सब कुछ वही मार्केट में हो गया. सो कबीर कह रहे हैं कि बीच में ही बस गया तू, करने क्या आया था. द ह्यूमन बर्थ which is so precious, has been called by all the scriptures so precious, was only given to us, granted to us after being a stone, after being a plant, after being animal in all our previous births, and after taking so many human births, kind of valuing in human births, that was given to us to unite with the divinity within, to unite with the soul within, अपने ही divine truth के साथ unity करना, so that उसका सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि तू निर्वाण हो गया और मुक्ति हो गई बस ना, बिल्कुल भी नहीं. यही जो जीवन है हमारा, जिसे हम अभी बहुत गंदा कहते हैं, जिससे हम बहुत निराश हो जाते हैं, इसी जीवन को हमने सुंदर बनाना है. और वो जीवन तब तक सुंदर नहीं बन सकता जब तक वो डिवाइन ट्रुथ हमारे से यूनाइट नहीं हो पाती. ऑल द पर्दाज आर नॉट शेड, ऑल द वेल्स आर नॉट शेड. जब तक वो यूनिफिकेशन नहीं हो पाती, तब तक हम उस सुंदरता को, जो सच्चित आनंद की सुंदरता है, तब तक हम उसको अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, जॉब्स में, इस दुनिया में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते. तो कबीर जी ये कह रहे हैं कि तू बेचारा कुड़े जा रहा है और ये बीच में जाके तू बस गया है. ये कहां फंस गया? और उस चीज को तू इतना इंपॉर्टेंट मानता है, तेरे लिए जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है. एक कपड़े पे अगर चाय गिर जाए अभी, तो तेरे को चिंता हो जाती है कि 1000 रुपए का कपड़ा था, और ये जो चदरिया झीनी दी है ह्यूमन बर्थ की, उसको तू 50 साल से पिछले व्यर्थ गवा रहा है, उसकी तेरे को एक बार भी चिंता नहीं होती. एंड दैट इज वाई इन वन ऑफ द दोहाज कबीर सेज, कबीर हंसना दूर करो, रोने से करो चीत, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मीत. कि हम तो हमारे हंसे ठिठोले किस में होते हैं? एक फंक्शन में चले गए, हंसी हो गई, 2-4 दोस्तों को मिल लिया, हंसी हो गई. कबीर कह रहे हैं तुम्हारा हंसना बहुत हो गया, बंद करो ये रोना हंसना, तुम तो रोना शुरू करो. Go through really tragic phases in life. Only then you would know that you are missing something really beautiful in life and what you are actually here for. So I think this the outer world has become so kind of sticky to us that we are valuing in darkness, and we even give it so much of priority. For example, if one has to come for a session like this, which has the power, the words have the power to awaken. आप सबको पता है, हम सब जानते हैं कितनी मुश्किल से हम समय निकालते हैं इन चीजों के लिए, एज इफ कि वो सारा का सारा जो है हमें बांधे हुए है, वो सारा इतना जरूरी बन के बैठ गया है कि हमें लगता है कि बस वही सबसे ज्यादा चलना चाहिए. अगर खाना मिस हो गया एक समय का, खाना नहीं मिस होना चाहिए, सेशन बेशक मिस हो जाए. वर्ड्स, आज मैं कोई एक किताब कबीर की या किसी की बैठ के पढ़ूं ना पढ़ूं, वो जरूरी नहीं है, खाना समय पे चलना चाहिए. सो दिस इज द ट्रैप दैट कबीर वॉर्न्स अस अगेंस्ट, कि ये फंस कहां गया. एंड अगेन नॉट टू से दैट खाना नहीं चलना चाहिए, खाने में भी आप डिवाइन प्रेजेंस इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप एक दासता के पथ पे हो, एक साधक के पथ पे हो, साधक के पथ पे हो. नहीं तो हमारा खाना भी सिर्फ भोग ही होता है और कुछ नहीं होता. जीव के भोग के लिए हम खाना खाते हैं. तो कबीर कह रहे हैं कि अगर तुम एक डिवाइन, इस मैनिफेस्टेशन को, इस ह्यूमन बर्थ को रियली में डिवाइन बनाना चाहते हो, तो अपने ही डिवाइन एसेंस के प्रति अब जागो. बहुत सो लिया, जाग सके तो जाग. पाछे में पछताएगा जब चिड़िया चुग गई खेत. बिकॉज वी डोंट नो व्हेन, हाउ मेनी डेज वी हैव टू लिव, हाउ लॉन्ग इज अवर ह्यूमन बर्थ, नोबडी हैज अ क्लू. राइट, लुक एट दिस ग्लोबल सिचुएशन, एकदम से आ गई कहीं से भी. ऑल द प्लान्स रिमेन शैटर्ड, ऑन होल्ड, हैंगिंग इन द बिटवीन द एयर.
So this is what life is. Life is unpredictable, unpredictable. And we don't know, but we have taken outer situations as if they will always remain the same. And what will remain the same, we have no clue about. And that is what the divine truth is. And that is what we have to push ourselves to. No matter how hard an outer situation becomes, push and push ourselves to the inner center, the divine truth, until you unite with it, until you identify with it. That yes, now my life has begun. And it requires a lot of courage. And that is why Kabir says, मेरा तो सूरमा ही कर सकता है इस पाथ पे, और कोई नहीं चल सकता. Why सूरमा? Two things, सूरमा एक तो होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें अपना ही सिर काटना है तुम्हें, अपनी ही ईगो को तुम्हें कत्ल करना है. तुम्हें दिखेगा मैं तो कल ये था, उसको काटो, आगे बढ़ो. मैं तो आज ये था, उसको भी काटो, आगे बढ़ो. सो सूरमा चाहिए. दूसरा, सूरमा क्यों चाहिए? क्योंकि बार बार देयर इज अ पुल ऑफ लोअर कॉन्शियसनेस दैट पुल्स अस डाउन एंड अट्रैक्ट्स अस अगेन एंड अगेन टुवर्ड्स द मटीरियल नेचर. But one has to remind oneself again and again, nothing else matters to me. Only unification with my divine truth, my inner truth matters. That is the task, that is the inner adventure I am here for. One has to remind oneself again and again against all odds. And odds are nowhere else but present in our own homes. आप ही के घर में कोई बोलेगा ये किस में लगी रहती है या लगे रहते हो, सुन लो उनकी बात, लेकिन फिर भी डटे रहो. And that is what a सूरमा is. सूरमा knows that अब मैंने ये पकड़ ली अगर राह, अब मुझे छोड़नी नहीं है ये. So on the, on your horse of tapasya and with the sword in your hand, you cut your own head to seek the divine truth within. प्रेम प्रेम सब कोई कहे और प्रेम ना चीन्हे कोई, अघट प्रेम पिंजर बसे और प्रेम कहावे सोए. तो कबीर कहते हैं कि प्रेम प्रेम की तुम बातें तो बहुत करते हो, सब कह देते हैं आई लव यू वेरी इजीली, बट प्रेम किसी को पता नहीं है. प्रेम न चीने कोई, अघट प्रेम पिंजर बसे. बाउंडलेस लव, अघट, घट इज बाउंड्री, अघट. बाउंडलेस लव exists right here in this being, in this mortal human existence. आप देखिए कितनी खूबसूरती है इस चीज में कि ऊपर ऊपर से सीमित लगने वाली चीज जो कि हमारी बॉडी है, जो बीइंग है, लगता है ना कितना सीमित बॉडी है, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 इंच, हाँ कितना सीमित लगता है. और उसमें क्या छुपा हुआ है? बाउंडलेस लव. एंड मोस्ट ऑफ अस रिमेन अनटच्ड with that boundless love most part of our lives, unless we are woken up from this deep slumber of ego. We are woken up by either a tragedy or some difficult challenging situation which really shatters us. तो ये टूटना बहुत जरूरी है. और टूटना सिर्फ एक चीज का हो सकता है, ईगो का टूटना हो सकता है, और कुछ नहीं टूट सकता. बिकॉज who we are in divine truth, who we are in divine essence can never be shattered, can never be broken. So let it break whatever wants to break. It's good to have ego broken, it's good to have a release by that, shattering of the ego. So let's go ahead. Unless I have any comments, questions, I'm open to take in the chat window. I'll keep on going on. मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर, मानुष ढूंढे बाहिरा, नियरे होकर दूर. तो कबीर जी कह रहे हैं कि मुझे लगता है, मैं जानू हरि दूर है, मेरे लिए हरि बहुत दूर लगते हैं. लगता है अरे भगवान भगवान होंगे कोई, होंगे कोई डिवाइन जिसकी ये बात कर रही हैं, मेरे लिए तो हरि दूर है. हरि हृदय भरपूर, कह रहे हैं तुम्हारे ही दिल में बैठे हैं, तुम्हारे ही हृदय में निवास है उनका. मानुष ढूंढे बाहिरा, बट तुम ढूंढ बाहर रहे हो. जो कंटेंटमेंट है, एक तसल्ली है, वो हम ढूंढते क्या है? अगर कोई दूसरा बंदा मुझे कोई 2 शब्द प्यार के कह दे तो मैं उसमें तसल्ली ढूंढता हूं. कोई दूसरा बंदा मुझे एक हग कर दे,
एक दूर से स्माइल पास कर दे तो मैं उसमें तसल्ली ढूंढता हूं। तो कह रहे हैं तू तो बाहर ढूंढ रहा है, तेरे को मिलेगा कैसे, तू ढूंढ ही गलत जगह रहा है। मानुष ढूंढे बाहिरा नियरे होकर दूर। तो क्या है कि है तो मेरे ही अंदर, बट मैं उससे अछूता इसलिए हूं क्योंकि मेरी नजर ही नहीं है उसके ऊपर। एंड दैट इज वाई व्हेन पेन कम्स, व्हेन डिफिकल्टी कम्स, when outer situation break us, shatter us, we are compelled to go within. Compelled. The ego is compelled to now look at itself. कि यार बहुत ढूंढ लिया बाहर, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, बहुत दुख झेल लिया, अब बाहर नहीं मिलेगा, ये नहीं पता अभी भी कहां मिलेगा, लेकिन ये मन में आ गया कि बाहर नहीं मिलेगा। बहुत हमने 20 साल शादी को हो गए, 10 साल इस रिलेशनशिप को हो गए, 15 साल जॉब के हो गए, लेकिन वो तसल्ली नहीं आई, तो अब बाहर तो नहीं मिलेगी। एंड देन वन कम्स बैक होम, एंड एज कबीर सेज, वेरी वेल रेजोनेटिंग विद दिस थॉट, ही सेज, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां लगी मन की दौड़, दौड़ थके मन स्थिर भया, तो वस्तु ठौर की ठौर। तो कबीर कह रहे हैं मैं इतने सालों दौड़ा, इतने जन्मांतर दौड़ा, और जहां मेरा मन लेके गया मुझे, जौन सी डिजायर लेके गई, जौन सी एम्बिशन लेके गया, मैं उसके पीछे भागा कि मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन जब मैं भाग भाग के थक गया, टूट गया, तब मैं जब अपने भीतर आया तो दिखा कि वस्तु तो ठौर की ठौर है, ये तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी। एंड दिस इज वेयर माय फ्रेंड्स, this is where sadhana begins. This is the beginning of sadhana. This is not the end of sadhana. When we turn within, when we tune within and turn to seek some light within this darkness that presents in our being, that is what is beginning of sadhana. That is what is beginning of a beautiful life and a humane life, if I can say. उससे पहले तो हम कैसा जीवन जीते हैं, उससे पहले हम जीवन जी रहे होते हैं एक एनिमल वाला, और उससे भी बदतर काफी बार। एनिमल का तो बहुत सुधरा हुआ जीवन है, कम से कम एक सरेंडर्ड जीवन तो है प्रकृति के थ्रू। हमारा जीवन तो उससे भी गिरा हुआ हो जाता है, अपनी ही डिजायर्स के पीछे भागे जा रहे हैं, अपनी ही अटैचमेंट्स के पीछे, बुरा भला सब दिमाग में चिपका के बैठे हैं, बट अपनी प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उसी एक छोटी सी एंटिटी ईगो को हम परपेचुएट करते चले जाते हैं, परपेचुएट करते चले जाते हैं, as if perpetuating our own misery by our own hands. And this is the very reason Sant and Gyanis have said कि मुझे तो तुम दुख दो, क्योंकि दुख में जितने मुझे तुम याद आते हो ना, उतने सुख में मुझे याद नहीं आते. So this is the very reason how difficult situation in our life can become a source of inner growth and source of inner progress. It can actually put us on the right path where we realize कि अच्छा मैं actually में ये सब करने नहीं आया था, मेरा पर्पस तो डिवाइन ट्रुथ को फाइंड करना था, वो तो मैं भूल ही गया. And then difficult situations, they push us, even when we are not willing to be pushed, they push us कि भैया तेरा पर्पस यही है, अभी तू तेरा हाईएस्ट पोटेंशियल तूने टच भी नहीं किया, तो उसके पीछे भाग, जितनी जिंदगी बची है अब उसके पीछे लग जा. And this is how difficulties then become really a kind of a beautiful opportunity for growth. So let's go further. बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की, कर बंदगी निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए. तो कबीर जी कह रहे हैं कि जिस तरह से हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनकी बात हो रही है. कबीर जी कह रहे हैं कि जिस तरह से तो तुम हो, तुम भी बंधे हो अपनी डिजायर्स अटैचमेंट्स के साथ, और जो तुम्हें मिलता है वो अपनी डिजायर्स अटैचमेंट्स के साथ बंधा हुआ है. तो बंधे को कौन मिला? बंधा. एक बंधे हुए इंसान को बंधा हुआ इंसान ही मिलेगा. बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय. और होता क्या है, दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स एक्चुअली बिकम वेरी इट बिकम फुल ऑफ मिजरी, क्योंकि एक बंदा दूसरे को तड़पाने की कोशिश है उसकी कि तू मेरी मांगे पूरी कर, दूसरा बंदा कह रहा है नहीं नहीं मेरी मांगे ये है, मेरी सेट ऑफ डिमांड्स अलग है, तू मेरी मांगे पूरी कर, और दोनों चिपक गए आपस में आकर. बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय.
आप कह रहे हैं, कबीर एक उपाय भी बता रहे हैं, रेजोल्यूशन भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कर बंदगी निर्बंध की, उसकी बंदगी कर। अगर तुझे स्लेव ही होना है तो उसकी बंदगी कर, उसके साथ जाके चिपक जो खुद बंधा हुआ नहीं है कहीं से, इंडिकेटिंग टुवर्ड्स अवर डिवाइन एसेंस, द इनर बीइंग दैट इज वेरी मच प्रेजेंट इन ऑल ऑफ अस। कर बंदगी निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। And this is really beautiful because we, all of us, when really we are able to unify ourselves with this divine presence within, then it does not matter who is saying what, and you will not chipko to anyone else throughout your life. It can be a guarantee if you have really touched your divine essence within. If you have now really become, started the process of unification, it is not possible that you stick or make life miserable for any other fellow human being on this earth. So this is the biggest compassionate act one can do for oneself and also the others by uniting with the divine essence within. तो आप एक तरह से सेल्फिश हो रहे हैं, आप अपनी डिवाइन ट्रूथ के पीछे पड़ गए हैं, और दूसरी तरफ से आप कंपैशनेट एक्शन से भर जाते हैं, क्योंकि अब आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। अब आपके भीतर वो जो फव्वारा है प्रेम का, वही आपको पूरी जिंदगी भर चला के रखता है, और वो फिर बिखर बिखर के आप हर जगह फैला सकते हैं। जैसे एक गुलाब है, गुलाब की खुशबू हर जगह फैलती है, गुलाब का होना ही बहुत है। उसको किसी को कह के जाके कहने की जरूरत नहीं, मेरी खुशबू ले लो, मेरी खुशबू ले लो, मैं बहुत खुशबूदार हूं, बिल्कुल भी नहीं। गुलाब का होना ही बहुत है, क्योंकि वो अपनी डिवाइन ट्रुथ में इमर्स्ड है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू बिकम। वी हैव टू बिकम लाइक फ्लावर्स। वी ह्यूमन बीइंग्स हैव टू बिकम लाइक फ्लावर्स, एंड अनलेस वी यूनाइट with the divine essence within, we cannot become that flower. All of us have unique fragrances, very unique, very, very special fragrances. No one exists like us, but only after we unite with the divine truth. अभी तो सब हमारे जैसे ही हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी डिजायर्स और अटैचमेंट्स के पीछे पड़ी हूं, तो दूसरा बंदा भी तो उसी के पीछे पड़ा है। क्या है मेरे में, क्या खूबी है ऐसी? बिल्कुल खूबी नहीं है। आई एम जस्ट अ रोबोट, नथिंग एल्स, of my own patterns, behavioral patterns that keep on repeating ourselves. So for the moment, I am not at all unique, but I have a high possibility to become unique only after merging in my divine essence, not before that. And that is why this path must be traversed. Now let us take up a question. Aradhana ji is saying, how do we unify ourselves with the divine within? Tendencies keep on coming on surface, and you become aware, try to surrender, but they come again and again. Yes. How do we unite with the truth within? Beautiful question, Aradhana ji. Thank you for asking. And this is the right path that you are on. See, what I said in the beginning is only human beings have the capacity to look at their own patterns. If a dog has a pattern, dog cannot look at itself. A pen cannot look at itself. A flower cannot look at itself. Aradhana ji can look at herself. So when you begin to look at yourself, you become conscious and you question, why am I acting in the same way repeatedly for 20 years in a row? And then something in you begins to awaken. And it's a very slow process. But as I've said many times, baby steps. इतनी जल्दी से हताश नहीं होना, अरे चेंज नहीं हो रहा। आपने एक मोमेंट में अगर कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया, ये मेरी मूवमेंट थी जो मैं पिछले 10 साल से चला रही हूं, enough of that step, baby step. Mother and Sri Aurobindo, mother says, if you can be less stupid in the next moment, even that can be enough as a progress. So progress on spiritual path comes very slow, very slow. It does not mean that it is not happening. Mother uses the example of egg. When a chick is developing in the egg, what is happening? For like many days, you just see the egg as it is from outside. You think, arey, nothing is happening, yaar.
कब आएगा, कब कब बनेगा, मुझे तो कोई आसार ही नहीं नजर आ रहे, राइट? बट when the right time comes, suddenly it cracks open. So Aradhana ji, I would say the task that you are at, the path that you are at, which is नेति नेति, कि ये टेंडेंसी मैं नहीं हूं, ये टेंडेंसी टूट जाए, अब नहीं चाहिए मेरे को, बहुत जी ली, 20 साल जी ली, ये टेंडेंसी, अरे ये तो मैं 50 साल से जी रही हूं, अब कुछ नया करते हैं, बिना टेंडेंसी के जी के देखते हैं. And then you become closer and closer to the divine. It's like as if I am breaking a wall of tendencies between the sun that is shining in us, the divine truth, the sun of the divine essence. और अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं धीरे धीरे कॉन्शियस होके वो पर्दा, एक दीवार जो मोटी सी खड़ी हुई है टेंडेंसीज की, पैटर्न्स की, अब मैं उनके प्रति अपनी आंख कर रही हूं, उनको देखना शुरू कर रही हूं. और आपके देखने की वजह से क्या होगा, आपके देखने की वजह से वो दीवार गिरना शुरू कर देगी. आपकी अटेंशन में वो तेज है, वो तपस है उस अटेंशन में कि वो उस दीवार को गिरा देती है. एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ अटेंशन, दिस इज द क्वालिटी ऑफ concentration that we human beings have. The moment I become aware of a pattern repeating in myself, that pattern cannot exist in my life if it's not serving me well. And that is one eat less in my wall which is blocking the ray of the divine directly to me. So this is how you travel the path. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए. सो धैर्य बहुत जरूरी है इस पथ पे. एंड दिस इज हाउ you have to do it the way you are doing it already. You are taking one step closer to the divine already when you are becoming aware to your own tendencies. And then slowly the wall of tendencies begins to shatter, because now here is somebody who is burning it with the attention. Is it clear, Aradhana ji? Have I made anything clear? Okay, great. Anything else, just ask again, I'll see whatever I can do. Yeah. Again, a beautiful doha and a little hilarious as well. Again, based on बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए. उसी से लिंक्ड है. सज्जन को सज्जन मिले, होवे दो दो बात, गधे को गधा मिले, खावे दो दो लात. Now look at our relationships, friends. Look at it. Beautiful. हम दो गधे मिल गए, जो दो बंधे हुए मिल गए, मैं अपनी डिजायर कामनाओं के पीछे, तू अपनी डिजायर कामनाओं के पीछे. तो एक गधे से गधा मिल गया या गधे से गधी मिल गई, और खावे दो दो लात. और पूरे दिन में क्या करते हैं हम, कितनी लातें देते हैं यार दूसरों को. ऑल द बहस, ऑल द आर्ग्यूमेंट्स. गधे को गधा मिले, खावे दो दो लात, सज्जन को सज्जन मिले तो होवे दो दो बात. तो अगर आपकी दो बात नहीं हो पा रही है किसी इंसान से, तो हम पहचान सकते हैं कि बात दोनों तरफ एक ही जैसी है, इधर भी गधा और उधर भी गधा. So this is really hilarious. These are the metaphors that Kabir uses beautifully to wake us up to our own self. Then further, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो हूं सो आध, कबीर संगति साधु की, कटे कोटि अपराध. सो कह रहे हैं एक घड़ी आधो घड़ी, आधो हूं सो आध, चाहे वो एक घड़ी हो, आधी घड़ी हो, या आधे से भी आधी घड़ी हो. कबीर संगति साधु की, जब आप साधु की संगत में व्यस्त हैं, जब आप एक साधक की संगत में व्यस्त हैं, जब आप वर्ड्स, ऐसे निर्मल वर्ड्स के साथ व्यस्त हैं विच आर फुल ऑफ लाइट एंड कॉन्शियसनेस, वो आपके क्या करते हैं, वो आपके कोटि कोटि अपराध काट लेते हैं. आपके पिछले जन्म वो क्लियर कर देते हैं, आपके पुराने कर्म क्लियर कर देते हैं. कैसे? वन कैन आस्क, ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हम जब पैदा होते हैं, वी आर फुल ऑफ अ बंडल ऑफ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स. वी आर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर्स रनिंग फ्रॉम द प्रीवियस लाइव्स एज इफ. एंड जब हम अपने प्रति जागना शुरू करते हैं,
संगति से, साधु की संगति से, सुंदर शब्दों की संगति से, तो हम उन टेंडेंसीज के प्रति अवेयर हो पाते हैं कि ये एक्चुअली में मेरा जीवन नहीं था अभी तक, ये तो मेरी वृत्तियां ही मुझे जी रही थी, मेरी डिजायर्स ही मुझे जी रही थी, मेरे एम्बिशंस ही मुझे जी रहे थे, मैंने तो अभी जीना शुरू ही नहीं किया। एंड देन जो आपके पिछले सारे कर्म हैं, जो सिर्फ टेंडेंसीज ही जी रही थी, वो सब क्लियर हो जाते हैं। एंड देन यू बिकम रेडी एंड प्रिपेयर्ड टू लिव अ न्यू लाइफ, uniting with the divine essence within, the most important part for which we are born as a human being. Unite with the divine within. And later on I will whoever wants to be in touch with us, because we will keep on doing these sessions and we have small WhatsApp groups on dohas as well and other things. Whoever of you would like to be a part can always leave in the chat window their numbers, phone numbers, so that you can be in touch before I forget to remind you. So if you want to be in touch with us, please leave your phone number and your name so that we can add you on the updations list, right? And I'll also share a link for contributions, because this is a voluntary, this is free of cost, but if any one of you would like to contribute, that is also a possibility. So I'll share the link later. Yes, I'll include you, Medhaji. Yeah. Let's go further and take a few more dohas and then we can see what to do. Keep posting your questions or comments if you have any. जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़, जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़, सहजे हीरा नीप जय, जो मन आवे ठोर। तो कबीर कह रहे हैं जितनी समुद्र की लहरें हैं, उतनी ही लहरें हमारे मन की होती हैं। आप देखिए ना, आप बैठते हैं आराम से और कितने ही विचार आपको क्रॉस करके चले जाते हैं। पास्ट आ गया, फ्यूचर आ गया, कोई आगे की वरीज आ गई, कोई एंजाइटीज आ गई, कमिंग फ्यूचर की, अभी प्रेजेंट मोमेंट से रिलेटेड कुछ आ गया। कह रहे हैं जितनी समुंदर की अनगिनत लहरें हैं, उतनी ही विशाल मन की दौड़ है। और कैसे इसका रेजोल्यूशन होता है? सहजे हीरा नीप जय, जो मन आवे ठोर। फ्रेंड्स, मन को स्टिल करना, मन को काम करना, मन को एक जगह ठहराना, इस पे सभी साधक जन बहुत बोल के गए हैं, बहुत ज्यादा। टू मदर एंड श्री औरोबिंदो हैव सेड, you must call peace and stillness in the body. You must call more and more peace in the body and in the mind. Before the mind becomes still, settled, centered, then you cannot find before that the real truth, which is the हीरा that Kabir refers to, कि नीचे जा और हीरा ढूंढ के ला। कहां जाऊं नीचे? अपनी ही डेप्थ्स में घुसना है, कहीं नीचे नहीं जाना। और उसके लिए हमें मेडिटेशन में भी बैठने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। just becoming aware, yes, just becoming aware and mindful of your own movements, that tendency, that capacity which only human beings have. Medhaji, you can put off your video, we don't need the video. So just these, the tendency, the capacity to look at our own self, that cares, they take care of all the limited patterns and beliefs and tendencies. एंड धीरे 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 हमें लगता है, यार ये तो मुझे लगता है मैं जी रहा हूं, ये तो पिछले 10 साल पुराना डिजायर मेरे को जी रहा है अभी तक। ये तो मैं बचपन में ऐसी थी और बचपन में ऐसा सोचती थी। ओके, इट्स ओके। मैं बचपन में ऐसा सोचती थी क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और उसी टेंडेंसी को मैं अभी तक लेके चल रही हूं। अब मेरे काम क्या आ रही है ये टेंडेंसी? So that kind of a view, if one has, that it doesn't matter whether, how shattered I am at the moment, any moment I can choose to look at myself and then something new gets revealed to me. And that itself becomes a meditation. One doesn't even need to sit in meditation. Meditation is becoming more and more conscious of your own movements. Why am I saying what am I saying? What is the hidden agenda behind my words? मैं इस बंदे से चाहता क्या हूं जो मैं ये बोल रहा हूं? And then slowly and slowly we become aware that actually
I am just living for my demands, expectations and ambitions, nothing else. No divine essence, no divine truth has been in touch with me so far. And this is how one becomes more and more aware of one's own self and gets that hira out, which Kabir says, सहजे हीरा नीपजे जो मन आवे ठोर. अब मन थोड़ा थोड़ा काम होने लगा है. मन को दिख रहा है कि मुझे बाहर से नहीं मिलेगा. मन को दिख रहा है कि मुझे ढूंढना तो अंदर ही पड़ेगा. और अब धीरे धीरे उससे क्या होता है, मन साइलेंट होना शुरू हो जाता है. मन कहता है ढूंढना तो मुझे है, कुछ तो है जो मिसिंग है, लेकिन वो अब मुझे बाहर नहीं मिलेगा. एंड देन द सर्च गोज विद इन एंड देयर स्टार्ट्स द इनर एडवेंचर. अभी तो हमारा मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट इवन स्टार्टेड विद द इनर एडवेंचर फॉर विच वी आर ऑल बॉर्न. वी आर ऑल बॉर्न फॉर दिस इनर एडवेंचर एंड दैट इज वाई यू मस्ट हैव फेल्ट एक रेस्टलेसनेस सी रहती है, एक इनकम्प्लीशन सी रहती है कि कुछ है जो आने वाला है, कुछ है जो अभी आया नहीं है लाइफ में, कुछ बड़ा है जो होने वाला है. वी ऑल नो समथिंग इज गोइंग टू हैपन. दिस इज द इनर एडवेंचर दैट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर. Looking at our own self, breaking the wall of tendencies and patterns so that the divine sun manifests through each one of us in this life, in this very mortal existence. So let's go further. कबीर यह मन लालची समझे नहीं गंवार, भजन करने को आलसी खाने को तैयार. तो कबीर जी हमारी बात कर रहे हैं. वेरी ऑब्जर्वेंट कबीर. whenever he says these things, he is observing the life all around him and himself. तो कह रहे यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रही है कि जब पार्टी वार्टी की बात होती है, शादी में इनविटेशन की बात होती है, या कुछ क्या बढ़िया पकवान बन रहे हैं, तो एकदम से फर्स्ट क्लास, हाँ हाँ बिल्कुल बनाइए, मैं तैयार बिल्कुल. और कोई अगर आपको सत्संगत के लिए बुलाए तो कहता है नहीं यार अभी तो बहुत काम पड़े, बहुत आई एम रियली टाइड अप विद टाइम नाउ डेज. एंड दिस इज हाउ अवर लोअर नेचर इज. अवर लोअर नेचर इज full of tamas. It does not want to move and progress. And this is a problem with all of us. This is how we are made in the beginning. And it's not that इसके लिए हमें गाली देनी चाहिए कि भगवान तूने हमें ऐसा क्यों बनाया. यही एडवेंचर है. देखिए जब तक एडवेंचर को एडवेंचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं, और फिर उनको ओवरकम करने का चार्म रहता है, एक चैलेंज रहता है कि यार क्या पता भी नहीं था और ये नदी आ गई सामने और ओवरकम कर गए. राइट. सो दिस इज द इनर एडवेंचर कि पता भी नहीं था कि तमस से बार बार खींचे चले जाएंगे नीचे की तरफ, बट खींच रहे हैं. अब चैलेंज आया, अब एडवेंचर क्या आया कि अब इसको कैसे ओवरकम करना है, तमस से कैसे बाहर निकला जाए, इनर्शिया से, एक जो इनर्शिया है ऑफ नॉट प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, उससे कैसे बाहर निकला जाए. और प्रोग्रेशन बाहर की तरफ नहीं है, ये प्रोग्रेशन इनर प्रेजेंस की तरफ है. माइंड यू दिस प्रोग्रेशन इज ऑलवेज इनर प्रोग्रेस, नॉट आउटर प्रोग्रेस. तो अब ये चैलेंज आया हमारे सामने कि अच्छा अब तमस है मेरे में, ये तो दिख रहा है, अब इससे उभरा कैसे जाए. एंड दिस गिव्स रियली अ ब्यूटिफुल जॉय टू ऑल ऑफ अस when after a few days we see, hey, I have made some progress and now I can move from that inertia which was killing me and suffocating me for so many years. So this is the adventure, this is the joy that we were waiting for. And then again connected to this is कागज केरी नाव है और पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं ये 5 कुसंगी संग. तो कबीर कह रहे हैं कि यार मेरी जो नाव है वो कागज के जैसी है, बड़ी फ्रेजाइल ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और पानी है बिल्कुल गंगा के समान गहरा. कागज केरी नाव है पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तिरूं, मैं कैसे तिरूं इस हालत में. तिरूं मतलब कैसे उस पर फ्लोट करूं, ये 5 कुसंगी संग. अब मेरी एक तो फ्रेजाइल बोट कभी भी जा सकती है, ऊपर से मेरे साथ कौन बैठे हैं, 5 कुसंगी. कौन है 5 कुसंगी? ऑल द 5 सेंसेस. what I see, what I touch, what I smell, what I hear and what I taste. So these are the 5 senses which live our life, which have hijacked our life. I live
अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सी. अगर कोई कोई मेरे सामने कोई फिजिकली कोई इंस्टेंस हो रहा है, टोटली आई विल टेक इट ऑन फेस वैल्यू एंड गो बाय इट एज इफ नथिंग एग्जिस्ट्स बियॉन्ड द सेंसेस, राइट. टेस्ट, टंग, जीभ का स्वाद, कौन नहीं परिचित है इससे? कौन नहीं परिचित है? वही हमें नाच नचा रहा है. 5 कुसंगी संग, ऐसी संगति है मेरी कि कुसंगत है, कुसंगी है मेरे साथ, और वो मेरी जो नाव है उसको बार बार हैवी कर देते हैं. मैं बार बार डूबने लगता हूं, एज इफ आई एम पुल्ड डाउन टू अ लोअर कॉन्शियसनेस अगेन एंड अगेन. कहे कबीर कैसे तिरूं ये 5 कुसंगी संग. नाउ व्हाट इज हैपनिंग? तो कबीर इज सेइंग कि ये जो 5 कुसंगी है ये क्या कर रहे हैं? ये मेरी नाव को और भारी बना रहे हैं. तो एक तो गंगा जितना भारी पानी, ऊपर से मेरी नाव कागज की फ्रेजाइल एग्जिस्टेंस, और 5 कुसंगी साथ में आके बैठ गए. तो हो क्या रहा है? दिस इज रेफरिंग टू ऑल दीज 5 सेंसेस which actually run our life and we don't live the life. It's as if the tendencies, the patterns are the ones who are running my life. The tendencies run my life. Desires run my life. I have no control over my desires. Ambitions run my life. Attachments run my life. I have no control over attachments, कि कहाँ लेके जा रही हैं मुझे. No control over that. So this is how life is, unless one becomes now begins to become aware कि अच्छा ये मामला चल रहा था, and that is why awareness then becomes really very important. Consciousness towards our own movements becomes very very important. और ये सबके बस की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब हम अपनी तरफ देखना शुरू करते हैं तो बहुत कचरा दिखता है. इतना कचरा दिखता है कि ऐसा लगता है कि जो बाहर दिखता था सारा, वो सारा अंदर आके भर गया है. बहुत कचरा दिखता है. और होता क्या है? अगेन रेफरिंग टू द सूरमा दैट कबीर सेज टू अस, कि एक वॉरियर स्पिरिट चाहिए आगे बढ़ने के लिए. एक सूरमा ही अपने आप को इतने पास से, इंटीमेसी से देख पाएगा, टूटेगा नहीं उसके बावजूद भी, क्योंकि सूरमा को कहीं ना कहीं पता है कि मैं एक्चुअली में ये नहीं हूं जो मेरे सामने है. मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ और है जो छुपी हुई थी अब तक, और अच्छा है ये कचरा सारा बाहर निकले, ताकि ये जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो सफाई, जो इनर पीस है, तब तक वो मुझे पता कैसे लगेगी कि मैं हूं कौन असलियत में. तो एक सूरमा ही है जो दिल पे ना लेके उसको एक प्रोग्रेस की तरफ, एक अपनी ही इनर एडवेंचर की तरह ले पाता है. अपने ऊपर गाली खाना, अपने ऊपर इंसल्ट सहना कि तुम ऐसी हो, हाँ बिल्कुल ऐसे हैं, अब चेंज तो हो सकते हैं, बदल तो सकते हैं, अब तक थे ना ऐसे, अब नहीं बदल सकते क्या? तो देखिए कितनी फ्लूइडिटी चाहिए, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. अगर कोई बंदा अभी तक ये समझ के बैठा है, आई एम अ टीचर, आई हैव बीन अ टीचर फॉर पास्ट 50 years and now this person says you don't know anything. Only a warrior would be able to take in a way which is only progress oriented. Only a warrior. कि अच्छा इसने जो बोला, क्या मैं उससे कुछ सीख पाऊंगा? क्या मैं उसी को वेट लेके, क्या मैं अपनी ही डेप्थ्स में एज इफ कि एक पत्थर लटका दिया जाए एक कागज के साथ. दिस इज हाउ पेन वर्क्स. पेन बिकम्स रियली हैवी and it takes us to the depths of our being like a stone tied to a paper. It takes us deeper and deeper inside us, where one has the possibility of uniting and finding that divine light within. Otherwise उस पेपर का बस चलता तो वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहता लहरों पे, बट पेपर का बस चलता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और फॉर्चुनेटली एक्चुअली. We are all given with our own challenges in life. And those are the ones which actually are so relevant if that plunging into our depths has to be done. Deep within our being. या घट भीतर 7 समंदर, या ही में 9 लाख तारा, या घट भीतर हीरा मोती, या ही में परखन हारा, या ही में गुरु हमारा. सो कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि इसी घट के अंदर, इसी बाउंड्री लिमिटेड ह्यूमन बीइंग के अंदर
वो हीरा छुपा है जिसकी तुम सबको तलाश है, या घट भीतर। लेकिन होता क्या है, जब पहले हम अंदर जाना शुरू करते हैं, अपनी डेप्थ्स में डेल्व करना शुरू करते हैं, हमें कचड़ा और डार्कनेस दिखती है, क्योंकि वो ऊपर ऊपर की लेयर्स में सिर्फ वही रहता है। और अच्छा है दिखने दीजिए, कोई बात नहीं, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और धीरे 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 ओनली दोज डेप्थ्स रिवील द शाइनिंग सन to all of us, which is our birthright, and without that our existence is as good as ash, as if nothing has even happened, बेकार बिल्कुल। और वो तभी पता लग सकता है, अभी आपको समझ हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि नहीं यार ऐश कैसे हो सकता है, इतना बढ़िया तो है जीवन, बट अनफॉर्चुनेटली one has to actually experience practically uniting with that divine essence. Only then the rest of the life seems as if कि मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ना के बराबर थी इस डिवाइन एसेंस के बराबर बिना। अभी तो हमको सब बहुत अच्छा खिला खिला सा लगता है बिना उसके, और मिजरी भी है, ऐसा नहीं कि मिजरी नहीं है, बट ऐसा लगता नहीं यार छोड़ना नहीं है, इस लाइफ को छोड़ना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ने को कह रहे हैं, कोई किसी को छोड़ने को नहीं कहा जा रहा, कहा यह जा रहा है कि इसी जिंदगी को जिसमें अभी हमने मिजरी भर रखी है, उसी में हमने वो सन की लाइट लानी है जो हम सब खुद हैं। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक ये प्रोसेस पे इनिशिएट नहीं किया जाए, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया जाए। आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उसी की अभी तक हम सारी डिस्कशन कर रहे थे। बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ अवर मूवमेंट्स, becoming conscious of our own hidden thoughts, agendas. These are the walls blocking the shining sun, in all of us. So friends, this is actually, this actually is a prayer, through Kabir's words. And I feel really grateful that it gives me an opportunity to share with you this urgency of all of us becoming pure gold. All of us, not each one of us, any one of us should be left. So as many of us who are ready must become pure gold, because that is what the world needs right now. तो अभी तक तो हमने बहुत टाल लिया, बट अब ना ही टालें तो अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया को इंतजार है। यस, पूरी दुनिया को इंतजार है कि कुछ तो चमके। इतना अंधकार कैसे हो सकता है, इतना अंधकार, इतनी बर्बादी कैसे हो सकती है, कुछ तो चमके कहीं पे। तो उस सन की सबको तलाश है। एंड दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस। अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट जस्ट टू फुलफिल अवर डेली चोर्स एंड डेली ड्यूटीज, नॉट एट ऑल. Our first and foremost responsibility is to unite with the divinity within, which is waiting for us to unite so that it can shine through us in our own unique way. And before we begin the unification, it cannot shine. What shines is only our patterns, our limiting beliefs. We are, abandoned and lost case before that. So we cannot say that मैं तो unique हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी. We cannot say before that, because you are not anything special. You are a bag full of ashas and trishnas, and I am also a bag full of ashas and trishnas. What is so unique about you? You are also running after your ambitions and desires. I am also running after my ambitions and desires. What is so unique about you, man? Nothing. So that is what we have to wake up to. And I can really tell you that there is something really beautiful that awaits all of us to be touched. कि हमसे ज्यादा तो वो तड़प रहा है बेचारा. जितना हम ईगो में रह के तड़पते हैं, divine also bleeds, because divine is our parent. How would it not bleed when the child is crying and suffering in an ego trapped life? So हमसे ज्यादा तो the divine feels lost, कि कब इतने मैंने इसको नॉक्स दे दिए, इतने इसके दरवाजे पे दस्तक दे दिए, यार अब तो आजा. So please, be kind to yourself and
travel this path in whatever way you want. You don't have to pick up one path. Kabir's words is one path. You can pick up another path, but don't leave this journey midway. Do it, fulfill it in this life. Very short life. We don't know how much life we have. So whatever moment I have, I must fulfill it. I must unify with that divine essence. And again, many methods have been discussed. And also to realize that I am never away from that essence. It's only this thought that I am away in any moment that keeps me away. One has to be constantly on guard. Kabir says कि जैसे वो एक नर्तकी होती है जो नाच कर रही होती है एक रस्सी के ऊपर, एक रस्सी टंगी है ऊपर और वो नाच भी कर रही है और उसका आधा ध्यान है रस्सी पर. This is how a parallel consciousness has to remain in the heart center, at the back side of the heart, deep within heart, where the divine presence is seated within all of us. So a parallel consciousness has to remain with the Naam, any name that you choose for yourself. And a parallel goes around in the world dancing its own way. But this parallel nature is very important. Otherwise, one really gets lost in the dance itself, suffers deeply, and then loses track of the rope that one has to, keep a track of. So that parallel consciousness is what Kabir says, Ram ka naam, for example. For us, it can be anything. One can use Kabir's name, anything that brings you back to center. So as Kabir says, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट घट में बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा सभी से न्यारा. तो कबीर जी कह रहे हैं एक तो वो राम है जिसे तुम पूछते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम. एक तो वो राम है, एक लिमिटेड पर्सनैलिटी, फुल ऑफ मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स. एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घट घट में बैठा, रेफरिंग टू द डिवाइन एसेंस विद इन ईच वन ऑफ अस. दूजा घट घट में बैठा, हर बाउंड्री के अंदर वो बैठा है, इमानेंट डिवाइन. तीजे राम का सकल पसारा, द लाइफ फोर्स दैट एनिमेट्स, द कॉन्शियसनेस दैट एनिमेट्स द होल एग्जिस्टेंस. चौथा सभी से न्यारा, उसकी तो बात भी नहीं करी जा सकती, क्योंकि जितनी भी बातें करेंगे वो कम होंगी. जैसे ही हम कुछ बोलेंगे उसके बारे में तो ऐसा लगेगा उसको सीमित कर दिया, तो इसलिए हम उसकी बात भी नहीं करते. एंड चूज एनी, पिक एनी, एंड स्टे इन पैरेलल कॉन्शियसनेस as you go about the day that you go about, parallelly offering all that you do in your life to that divine essence. Hey divine, I do this now for you. I drink this tea for you because I am your servant. I have to keep myself fit and fine. May this tea give me the required energy that is required to unify myself with you. Like that, in each and every act, you can infuse consciousness. So you are talking to a person, and even that conversation can become divine. How? By keeping a parallel consciousness on, remembrance, sumiran. As Kabir talks about sumiran, कि आप क्या कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं और आप नहाते नहाते आप ऐसे नहा रहे हैं as if a servant of divine is getting ready for a day full of gratitude and service to the divine. This is how we offer our works to the divine. आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते बनाते remember, keep remembering and offer it. I make it for you, I do it for you. So no part of our life should be untouched by the divine presence. And again, taking up a couple of last ones on Sumiran, which Kabir says कि सुमिरन की सुध ऐसे करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस्दिन आठों जाम. तो कबीर कह रहे हैं कि सुमिरन की तो तुम भैया ऐसे सुध करो जैसे कि कोई एक एडिक्ट होता है ना, वो एक एडिक्शन उसका पूरा हो जाता है तो वो सोचता है मैं अगली सिगरेट कहां से लाऊंगा, या मैं अगला सीरियल कैसे देखूंगा. वी कैन बी एडिक्टेड टू एनीथिंग, अगला जाम कैसे पीऊंगा. ऐसा सुमिरन होना चाहिए कि एक अभी खत्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू, एक रिमेम्बरेंस खत्म नहीं हुई कि दूसरी शुरू, तो एक भी पल आप वेस्ट नहीं कर रहे.
एक भी मूवमेंट अनकॉन्शियसनेस में नहीं गवा रहे। सुमिरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस्दिन आठों जाम। ऐसे सो रहे हैं तो सोते सोते भी ऐसे सो रहे हैं कि ये भगवान, दिस स्लीप इज ऑफर्ड टू यू, मे आई रिवाइव माई सेल्फ थ्रू दिस स्लीप so that the next morning can again be offered to you. This is the intensity of what Kabir is hinting at. Now there are many surface levels also one can touch through Kabir's words, just enjoying Kabir and just enjoying the songs, for example, and these are also, I think, steps on the way which are necessary कि चलो ना सुनने से सुनना अच्छा, but then we should not just get stuck there. We should also traverse the depths behind these words and use those depths for reaching the depths within our being. Without that, कबीर भी हंस रहे होंगे कि ये क्या करने लग गए और मैं क्या बता के आया था. So without that, I think we don't do justice to Kabir's words also. So let's I'll take last doha, and after that I'm happy to take any comments or whatever you have to say. जीना थोड़ा ही भला हरि का सुमरन होए, लाख भरस का जीवना लिखे धरे ना कोई. तो कबीर कह रहे हैं कि ऑब्वियसली जीना की पहली बात तो कोई गारंटी नहीं है, कब मर जाओ, कब निकल जाओ, आगे चले जाओगे, फिर तो कोई दूसरा जन्म लोगे, फिर ऑल दैट प्रोसेस ऑफ टेकिंग द बर्थ अगेन. जीना है तो चलो कम जी लो, ऐसा नहीं है तुम्हें 80 साल की जिंदगी पूरी करनी है, कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. जीना थोड़ा ही भला, बट उसमें क्या होना चाहिए? हरि का सुमिरन, पैरेलल कॉन्शियसनेस ऑन द डिवाइन प्रेजेंस विद इन योर हार्ट. जीना थोड़ा ही भला हरि का सुमिरन होए, लाख बरस का जीवना लिखे धरे ना कोई. कोई नहीं तुमसे हिसाब लेगा कि मैं 100 साल जी के आया हूं, एज इफ कोई मेडल लगा हुआ है, कि 100 साल में किया क्या तुमने, अपनी टेंडेंसीज वृत्तियां जीती रही, तुम कहां जिए. तो कह रहे हैं कबीर कि अगर तुम कम ही जियो, बेशक 1 दिन जी लो, 2 दिन जी लो, लेकिन उन 2 दिन में वो रस जरूर लेके जाओ डिवाइन प्रेजेंस का, उससे वंचित ना रह जाओ, उस रस से. सो दिस इज व्हाट आई थिंक दिस Kabir also reminds us again and again. Why? Because he himself has tasted that nectar of the divine presence. He knows the importance of that divine presence. He knows that the other life is also lifeless. The other life without this divine presence is actually a lifeless life. No wonder we feel so lifeless at many times. तो कबीर कह रहे हैं कि प्लीज अगर जीना ही है तो थोड़ा कम जी लो, बट खुल के जियो, डिवाइन प्रेजेंस के साथ जियो, उतना ही बहुत है. बाकी तुम्हारा कोई लिखने धरने वाला नहीं है कि 100 जिए या 105 जिए, वो तुम नहीं जिए, वो तुम्हारी टेंडेंसीज जी ली, राइट. सो इट वॉज मोर अ रोबोटिक काइंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ. So I think I've said enough, and this is enough for our own kind of ruminations, if I can say. And this is the website which you can visit if those of you who are interested in connecting with us, and you can leave your numbers also. Medhaji is asking a question: how can younger generation feel connected with Kabir? How will they invoke Kabir in their life? Medhaji, very beautiful question. Yes, because younger generation is the one which is full of energy, and that energy has to be channelized. And we, the older generation so called, we have to become shining lights in front of them, first of all, because they look at us, they look up to us. और अगर हम ही अपने कीचड़ में गिरे रहेंगे तो उनको लगेगा एक्चुअली में ये लाइफ बेकार है, चलो बेकार से ही जी के चले जाओ. So the first and foremost is to live ourselves as a shining beacons of light, so that people are looking up to us rather than saying कि यार इतनी बेकार जिंदगी मेरे को नहीं जीनी, मैं तो बस गंवा के ही जाऊंगा. Young people think like that because they see us adults wallowing in dirt and darkness. So they say अच्छा बेकार सा ही जीना है, चलो मैं फिर ड्रग एडिक्ट ही बन जाता हूँ, कोई बात नहीं, इतना बेकार जीना है तो ये भी तो बेकार ही जी रहे हैं. So the first thing is to work on ourselves and to unite with ourselves in the divine essence within. Before that, nothing is going to happen. And after that,
very much would happen, but it will be very effortless, because after that you become a flower, and then you don't have to put effort in reaching out for your fragrance. People can smell it for far away. Aradhana ji is asking, can you refer some books on Kabir? uh, Aradhana ji, you'll have to Google it. Actually, I'm not in touch with many books on Kabir, but there is much material available, I'm sure, online, YouTube. Even many sessions from Acharya Prashant are available on, Kabir's dohas and other things. So I got to know of dohas through Acharya Prashant, and online dohas, picking up dohas and then, contemplating on it, reflecting on it. Yogesh ji, dhanyavad. Thank you. Hold a book. Aradhana ji, don't tie yourself to holding a book. Make a copy. Take it from the internet, dohas, and make a book yourself. It's beautiful to write in your own handwriting as well. So if you can get a book, it's okay. If you can't get a book, then make your own book. It's beautiful to look at your own handwriting many a times. And also the words, when you are writing these words, they go more deeper within when you are writing a doha. It's really beautiful. Yeah. Yeah. Make a book of your own, Aradhana, what a beautiful name. So Aradhana with Kabir, you can make a book like that.